So back to cricket now. Play begin. To openers on the ground, Kalpesh Bablu and Yasuddin Sheikh. The last match of evening between B Indian and SP Sport Dhobi Talao. This is the today's biggest match. First ball this time put away over the infield. We wait for umpire signal and first ball cross the long on boundary for 4. It was a juicy off volley and played equally, put away very nicely. Mid-on is up in the circle from Kalpesh Bablu and one bounce cross the boundary for 4. So Kalpesh Bablu off the mark with boundary. Mahindra Sport 4 for no wicket. Only one man, two men now outside the ring. This time fine delivery, try to play it through the offside, just past the bat to wicket keeper. Lovely ball indeed. Batsman try to play his stand and deliver his stroke. Latif. Goes to Kalpesh, switch it, one bounce cross the boundary for 4. Beautifully played, predetermined stroke. One bounce through the squarish third man boundary for 4. So 8 without loss. Next match, B Indian captain and SP's captain. This time it's in the air, could be caught, men under it. Yes, he's out. No mistake by Akshay Deep and Kalpesh Bablu on his way. So 8 for the loss of 1 wicket. New man in the king of Bhiwandi cricket, Bilal Sheikh on number 1 down. These two are very dangerous players. A lot of depend on Bilal and Ghiyasuddin's batting and Sachin Gaikwad. This time put away a pitch stroke. They want a single, what a stop and a throw from Waqas in covers. No runs. This is eventful over so far from Latif to boundary wicket and just now Ghiyasuddin sliced as ball but straight to cover point. The last match of evening between B Indian. This time uses Fitz, beats him outside the off stump. That marks end of the first over. 8 for the loss of 1 wicket. Mahindra losing a toss batting first here.
End of the first over, his score is 8 for the loss of 1 wicket. Ghiyasuddin is still yet open his account, 2 dot ball he played. Bilal yet face any ball. Jallis, there is a 30 minutes calculated time for 6 overs. Remember, Tariq Rais fam team, Jallis Sports, and MLA Rupesh Matre fam team, Mahindra Sport. Yusuf Rajasthani, the cutter bowler with us, right of us. Akshay. Ball this time goes his back foot punch beautifully past the extra cover for 4. Delightful stroke played by Bilal Sheikh. Waited for a swing, goes his back foot and punch very hard past the extra cover, racing all the way, all on the ground for 4. Look at that, max room and punch very hard, with given by bowler Akshay. So Bilal off the mark with boundary, and his score is 12 for the loss of 1 wicket. Nihal Zamidar with us, the proprietor of Sidra Restaurant. This time lovely looking on drive, fielder find the ball in deep, slightly trembling, but both batsmen settle for only 1. So 1 more to total now, his score moves up to 13 for the loss of 1 wicket. Akshay, right arm round the wicket, facing him Ghiyasuddin Sheikh. Goes to Ghiyasuddin, uppercut over the infield, but not a power back stroke. But Ghiyasuddin gets 2. Not a very good stroke. Control uppercut off the mark with 2. And his score moves up to 15 for the loss of 1 wicket. After famous trophy, I think Mahindra looking some huge performance from these two. This time, lovely looking on drive. What an excellent stop from Zarar Mullah, saving 3 runs. Excellent fielding from Zarar Mullah. Slightly awkward bounce is there, but athletic, fine effort from Zarar, saving 3 runs. You can see there, jumping stop. Akshay goes to Bilal, put away in the air, fielder under it. Bilal is out. Big fish has gone now, and Jal is delighted. Oh, Salima. This is not a good season for Bilal Sheikh. He made half century in famous trophy, but this season not a very good season for the best batsman of the previous year, Bilal Sheikh. बिल्कुल वापस सर, इस साल हम देख रहे हैं कि बिलाल शेख उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर रहे जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं. 16 for the loss of 2 wickets. Mahindra, new batsman in Suresh Pardi. Yesterday evening, Pardi played a terrific knock. 29 runs he made. He is the man of the series in CPL trophy. Mahindra won 1 cup and Jallis one time qualified for the quarter final in this season. Mahindra is one-time runners also. Beauty, beauty. That was the wrong way
from the bowler and batsman left lawn. That marks end of the second over. Mahindra has put not enough total on the board because they know Zarar Mullah is the informed batsman. Kamran Patel is the informed batsman. 16 for the loss of 2 wickets. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर हम देखा, दोनों गेंदबाजों ने, लतीफ ने और अक्षय जूनियर ने बेहतरीन गेंदबाजी की। बी इंडियन के कैप्टन और एसपी के कैप्टन, एसपी धोबी तालाब के कैप्टन और बी इंडियन के कैप्टन, आप दोनों को रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए आना है। बी इंडियन के कैप्टन और एसपी के कैप्टन, दो ओवर और 16 रन। मजहर खान, बात है कि मजहर खान बात यह कि हालांकि महिंद्रा के कप्तान जानते हैं कि जैलिस की जो बैटिंग है उसमें काफ़ी गहराई है और जरार मुल्ला अच्छे फॉर्म में है, कामरान पटेल अच्छे फॉर्म में है। हालांकि हरकम अपने फॉर्म को लेके परेशान है। गेंदबाजी के लिए लेग कटर गेंदबाज जीशान आए हैं। बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी की है जीशान ने इस सीजन में। बहुत कुछ डिपेंड करता है गैसुद्दीन शेख पर। अच्छा ड्राइव, छोटी बैकलिफ से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, 1 रन। गैसुद्दीन शेख, सुरेश पारदी, सचिन गायकवाड आने वाले बल्लेबाज है, इन पे सब डिपेंड करेंगे। और पपिया खारिक, हालांकि स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पे तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2018। इस मर्तबा बहुत दूर कर बैठे दूसरे मोहल्ले में वाइट। फुल टॉस गेंद भेज दिया है, गेंद को मैदान के बाहर, 6 रन। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब सोच है कि वो हमसे कुछ टुकड़ा टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब सोच है कि वो हमसे कुछ टुकड़ा। आप सुरेश पारदी को घी का लड्डू नहीं दे सकते, बहुत ही गिफ्ट दिया था वहां पे, स्वंग कर दिया 6 रन। इस मरतबा अपील वहां पर नॉट आउट। कल 9 स्टार ट्रॉफी का शाम 7 बजे गोवा नाके पे ड्रॉ है। नाइन स्टार ट्रॉफी में जो टीमें खेल रही हैं उनको कल 7 बजे गोवा नाके पे
जो ड्रॉ है लॉट फॉर्म उसमें रहना है। इस बीच अगेन मोदी ऑन साइड में सुरेश पारदी ने थ्रम्बल करते हुए वहां पे खिलाड़ी 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है महेंद्र का 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। अच्छी गेंद छटा था वहां पर जीशान ने। ये देखिए बहुत ही नाटकीय क्रिकेट ग्राउंड में चलता हुआ स्कोर है 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। आज शाम का आखिरी मुकाबला आप देखने जा रहे हैं बी इंडियन बनाम एसपी स्पोर्ट धोबी तालाब, जो आखिरी क्वार्टर फाइनल प्री क्वार्टर रहेगा। 3 टीमें क्वार्टर में पहुंच चुकी अब तक। कल 4 बहुत बढ़िया गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई थी। कल 3 प्री क्वार्टर और 4 क्वार्टर खेले जाएंगे और परसों 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। वह समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 26 रन। विकेटें गिरी है महेंद्र की 2। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स। इरफान शेख मेरे दाईं ओर, मजहर खान, साहिबा मोमिन। इरफान शेख बहुत ही की प्लेयर हैं, लेकिन खास तौर से उनके अपने ट्रॉफी में वो उतने नहीं चमके। राजू डीएससी के, नियाल जमींदार, सीदरा धाबा। तो इस वक्त 3 ओवर की महिंद्रा समाप्ति पर स्पोर्ट्स को 26 इस रन। वक्त अभी ने अकलोली से ऑल द बेस्ट कहा है। ओम मात्रे एंड अभी दलवी और ओम मात्रे, आपका हार्दिक स्वागत है इस अंजुमन ट्रॉफी में। इस मर्तबा बढ़िया गेंद थी, घूम के मारने की कोशिश थी, खींच के मारना चाहते थे वहां पर गैसुद्दीन शेख। गेंद थोड़ी बैठी थी और पहुंची थी विकेट कीपर के पास। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंद रही वहां पर अक्षय जूनियर की। बहुत ज्यादा सफल हो गए थे गैसुद्दीन और घूम कर खेलना चाहते थे। बाबा सर हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है जिस तरह की बल्लेबाजी हम अक्सर देखते हैं गैसुद्दीन करते हैं, बिलाल करते हैं। उसका कारण ये है कि जो गेंदबाज है वो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। अक्षय जूनियर इस मर्तबा गेंद को खेल दिया उन्होंने हवा में, फील्डर उसके नीचे और गैसुद्दीन शेख भी आउट। लगातार दोनों भाइयों के लिए सीजन उतना अच्छा नहीं रहा। हमसे जुड़ चुके हैं यूसुफ राजस्थानी, कटर गेंदबाज, ठीक हमारे दाईं ओर। बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी वकी स्पोर्ट मापुली के सामने टाइट सिचुएशन में जो मुकाबला बाली में खेला गया था। अरबाज शेख दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए, आवाज भी उनकी राजकुमार की तरह भारी है। मजहर खान तो बाली ट्रॉफी से कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं।
उज्जू हुजैफा ने गैसुद्दीन को आउट होने के बाद ऑल द बेस्ट कहा है। नहीं भाभी सर, उन्होंने पहले कहा, मैसेज आपको शायद लेट मिला है। अब जब मैसेज मिलेगा जब ही पढ़ा जाएगा। नए बैट्समैन सचिन गायकवाड़, तेज हवाएं चल रही है। इस मरतबा स्विच हिट खेला है वहां पर सुरेश पारदी ने 1 रन। सचिन गायकवाड़, इनके बारे में तो मैं अक्सर कहता हूं कि जो सचिन गायकवाड़ है ना, इनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा काम करती है। कमाल के खिलाड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं प्लेस पवेलियन में इस वक्त खुशी का माहौल नहीं है। बिलाल शेख, गैसुद्दीन शेख, लेट नाजिम असलम अंसारी प्लेस पवेलियन का मंजर दिखाया जा रहा था। बहुत बढ़िया पेस परिवर्तन, बीट किया वहां पे सचिन गायकवाड़ को। और पूरा बाली ट्रॉफी उठा के देखिए, कप्तान सचिन गायकवाड़ ने हमेशा बहुत अच्छी बल्लेबाजी की टाइट सिचुएशन में। ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद थी। अक्षय चले, धीमी गेंद, स्ट्रोक को चेक करना पड़ा, पुश किया गेंद को मिड ऑफ पे, 1 रन। क्या रणनीति है। सचिन गायकवाड़ को लगातार धीमी गेंदें खिला रहे हैं। उनको पता है कि इस बल्लेबाज के अगर गेंद जितनी तेज दी जाए उतना तेज मारते हैं। बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर जैलिस प्रिंस की तारीफ करना, उनके गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे। और अक्षय जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, हमने देखा था बाली ट्रॉफी में भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी और एक मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। और बड़ी बात है कि जैलिस प्रिंस के 2 बैट्समैन बहुत अच्छे टच में, जरार और कामरान। इस मरतबा बढ़िया यॉर्कर बचाया वहां पर। 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने महेंद्र, 4 ओवर की समाप्ति पे रन बने महेंद्र के केवल 28, 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर में महेंद्र कितने रन बनाती, जबकि आखिरी ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है बी इंडियन के कैप्टन और एसपी के कैप्टन, ये लेट नाजिम अंसारी प्लेस पवेलियन का नजारा आपके टीवी मॉनिटर पे। बिलाल शेख, गैसुद्दीन शेख, पपिया खारिक, राजू भोगा, हमारी खुशकिस्मती है कि एसपी के करता धरता राजू हमारे साथ हैं। और खुशकिस्मती है कि बाली ट्रॉफी नहीं बल्कि फेमस ट्रॉफी की पहली गेंद से अंजुमन की आखिरी गेंद तक हमारे साथ रहेंगे। इस वक्त अल्पेश नाइक, कारीवली, सागर नाइक और ने सुजीत नाइक और महेंद्र को ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 28 रन है। आखिर के दौर के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं कमेंट्री में उभरती हुई आवाज और कमेंट्री की नई सुबह, जिनको कहा गया था बाली ट्रॉफी में, मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। तो हम यहाँ पर देख रहे कि जैलिस प्रिंस के गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करे। 4 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 28 रन और लास्ट ओवर अक्षय ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ 2 रन दिए। और 5वां ओवर लेकर आते हुए जीशान, पहली गेंद का सामना किया, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। या फ्लिक स्ट्रोक
बढ़िया फ्लिक स्ट्रोक वहां पे अपने आप को लाइन से अलग किया, हालांकि बहुत खराब फील्डिंग थी डीप में 4 रन बनते हुए। बहुत तेज हवाएं बह रही है मैदान पर, अब जाकर दोपहर तक बहुत गर्म मौसम रहा। बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त सचिन गायकवाड़ के बल्ले से, इस चौके की मदद से स्कोर 32 रन पर पहुंचता हुआ। और इस बार अपनी पेस को चेंज किया वहां पर जिशान ने और बैट्समैन को चकमा दिया। बेहतरीन गेंद वापसी करते हुए इस वक्त जिशान, बहुत ही बढ़िया गेंद। अट्ठाईस रन 3 विकेटों के नुकसान पर महिंद्रा स्पोर्ट्स कल्पेश बबलू 8 रन बनाए, गैसुद्दीन 4 और बिलाल शेख 5 रन। अभी भी सुरेश पारदी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, उनका साथ देते हुए सचिन। और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, एक बार फिर से घूमकर खेलना चाहते थे सचिन, तब तो वापसी करते हुए जिशान। पहली गेंद पैरों पे खिलाया था और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला था सचिन ने, फ्लिक कर दिया। उसके बाद 2 गेंदे बेहतरीन गेंदे की, और यही एक बड़े गेंदबाज की निशानी रहती है भावेश सर के, वो जितनी जल्दी अपनी गलतियों से सबक ले ले उतना अच्छा रहता है उनके लिए भी और अपनी टीम के लिए भी। और इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, जरार मुल्ला वहां पर मौजूद है और सचिन गायकवाड़ की पारी भी अब समाप्त होती हुई। एक और आखिरी मैच के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा। इस वक्त बी इंडियन के कैप्टन और एसपी के कैप्टन, आप दोनों को हमारे लेट अब्दुल रहमान अंसारी टॉस बॉक्स में बैठना है। बी इंडियन के कैप्टन आ चुके हैं, यासिर शेख तेज गेंदबाज। तो सचिन गायकवाड़ की पारी भी समाप्त होती हुई। लो फुल टॉस गेंद थी और उसको भी फ्लिक करना चाहते थे सचिन, बैट का टॉप पिच लगने के बाद सीधा जरार मुल्ला के हाथों में गेंद जाती हुई। इस बार बहुत ज्यादा सफल हो गए थे और गेंदबाज मानो दूसरे मोहल्ले में जा बैठे, वाइट का इशारा आता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिंच सकता हुआ 33 रन। कहीं ना कहीं महिंद्रा यहां से 50 के ऊपर देख रही होंगी, कम से कम 50 तो बनाए जाए, क्योंकि जरार मुल्ला, कामरान, वकास, अरकम, अक्षय, और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक सुरेश पारदी के बल्ले से आता हुआ। एक बार फिर से वहां पर जरार मुल्ला मौजूद थे, लेकिन देखना एम्पायर के इंतजार का इशारे का इंतजार रहेगा। ये देखिए 6 रन का इशारा आता हुआ। स्प्रिट शो करते हुए जरार मुल्ला, उन्होंने खुद कहा, हालांकि बहुत मुश्किल अवसर था, कोशिश भी बढ़िया की थी, बहुत दूर से आना पड़ा था, सीधे प्लेट से लॉफ किया था, वाइड लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे जरार, लेकिन अच्छी स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाते हुए खुद ही इशारा किया कि गेंद 6 रनों के लिए बाहर गई। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त सुरेश पारदी, पिछले मैच में भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने और मैन ऑफ द मैच रहे थे। और इस बार सफल होकर एक बार फिर से लंबा हिट लेना चाहते हैं, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत दूर से आते जरार मुल्ला। इस 2 रन की मदद से स्कोर 41 रन पर पहुंचता हुआ
5 ओवर की समाप्ति पर। यस, 5 ओवर 41 रन और 4 विकेट। देखना है कि दो अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं, कितना फायदा लेते हैं आखिरी ओवर का। शकील पापा फैम टीम, एसपी स्पोर्ट दापोडे, एसपी स्पोर्ट धोबी तालाव के कैप्टन, जिनके के मैनेजर हैं राजू। ये वीआईपी डाइस, ये हमारा कमेंट्री बॉक्स, इरफान तो लास्ट ओवर लेकर आते हुए दिनेश सामना करेंगे पपिया खारिक। पांच ओवर की समाप्ति पर 41 रन। अब देखना लास्ट ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, और दिनेश देखना है कि उसी तरह की गेंदबाजी करते अब तक जिस तरह की 5 ओवर हुई है। दिनेश पहली गेंद वाडी यॉर्कर किया था, खोद कर निकाला है। पपिया खारिक ने 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन अपने पास ही स्ट्राइक रखना चाहते हैं सुरेश पारदी। इस 1 रन की मदद से स्कोर 42 रन पर पहुंचता हुआ। excellent stop and a fine return from Zarar Mulla, rapid one, and Papaya Kharik change his mind and settle for one. 42 for the loss of 4 wickets. Zarar Mulla today's fielding excellent, taken the catch of Sachin Gaikwad also. और इस बार स्विच स्ट्रोक खेलना चाहते थे। बैट का टॉप पिच लगने के बाद नो मैंस लैंड में टप्पा खाती हुई गेंद, जब तक कामरान पटेल गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन पूरा किया। स्विच हिट खेलना चाहते थे। इस वक्त फोकस मैन बाली ट्रॉफी के अल्ताफ बाली के राइट हैंड अजमल नासिकर ने रमीज रईस की लाजवाब अंपायरिंग के लिए उन्हें ऑल द बेस्ट कहा और मुबारकबाद दी। आपका इस्तेकबाल है अजमल। इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव, अब कोई मौका नहीं, देखते रह गए जरार मुल्ला। 4 रन। क्या कड़क शॉट था, कड़क चाय और कड़क शॉट दोनों मूड बना देती है। क्या शॉट खेला था। पपिया खारिक ने गेंद को आसमान में लिफ्ट कर दिया है, कोशिश बढ़िया लेकिन कैच छूट गया और गेंद पहले बाउंस पर 4 रन। इसे कहते हैं मौका भी देना और चौका भी देना। ये पपिया खारिक है, पिछले साल भी इस तरह ड्रॉप सीन में आते थे, अच्छे शॉट्स खेलते थे और 30 रन बनाते थे। आज भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। 51 रन बने। कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें। अगर एक बड़ा स्ट्रोक आया तो फिर राजू बोगा, गैसुद्दीन शेख, सुरेश पारदी की गेंदबाजी परीक्षा ले सकती है कामरान, जरार मुल्ला, अरकम और वकास की। बहुत ही कड़क शॉट खेले हैं वहां पर।
इस मरतबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, फील्डर मौजूद है डीप में, लेकिन समय बैट्समैन के पास 2 रन लेने का। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई लास्ट ओवर में पप्या खारिक इस वक्त बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस 2 रन की मदद से स्कोर 53 रन। अंदर लगी थी बल्ले के, 1 रन पूरा किया वहां पर, दूसरे के लिए जा रहे हैं, खराब फील्डिंग और 2 रन पूरे। तो कुल मिलाकर महेंद्रा ने बनाए 55-56 रनों की चुनौती रखी है जेलिस तलोली के सामने। आइए दोस्तों, आज शाम के बड़े मुकाबले के टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें कल शाम एमसीसी के सामने रनों की लूटमार मचाई थी बी इंडियन ने, आज शाम फिर खेलने जा रही है। सामने एसपी धोबी तालाब स्पोर्ट्स। दोनों कैप्टन टॉस बॉक्स में इस वक्त यासिर शेख आइए राजू खान और नवीश शेख से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको टॉस बॉक्स में आना है। ऑल द बेस्ट यासिर एंड ऑल द बेस्ट विकी। ये सिक्का मैं दे रहा हूं। टॉस को जीता है बी इंडियन ने, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। यासिर ये बताइए, बी इंडियन सुबह में खेले, दोपहर में खेले, शाम में खेले या रात में खेले? बी इंडियन के फैन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, अभी भी बढ़ चुके हैं। शाम में आप खेलने जा रहे हैं, नंबर 1 टीम का अंदाज ही अलग रहता है। अपने टॉस जीता है, क्या करना चाहिए? हम बैटिंग करेंगे। फिर से वही कहानी, बैटिंग इसलिए कि शाम का समय है और सूरज कहीं ना कहीं डूब ना जाए, यही कारण है या कोई और कारण है? नहीं, यही कारण है। अब थोड़ा शाम हो चुकी है और हवा चल रही है, उसका थोड़ा फायदा उठाने की कोशिश करें। कल टीम में 1-2 चेहरे नहीं थे, आज टीम पूरी है। नहीं, मुनाफ आया है, शबान भाई शायद नहीं है और जावेद नहीं है। ये बताइए कि चेवन में कहाँ तक देखते हैं? 70+। और क्या लगता है कि बी इंडियन फिर से बैक टू बैक कहीं टूर्नामेंट में लगातार क्वार्टर खेल रही है, इस तरफ भी क्वार्टर की तरफ बढ़ना चाहेंगी? जी इंशाल्लाह। और क्या अपेक्षा रखते हैं आप अपनी गेंदबाजी से? मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और जो फॉर्म मिला है उसको कंटेन करने की कोशिश करूंगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अंजुमन ट्रॉफी का चाम बरकरार रहेगा बी इंडियन की वजह से? जी इंशाल्लाह ज़रूर। अंजुमन ट्रॉफी वैसे भी बहुत अच्छी हो रही है और ये लेवल पे अंजुमन ट्रॉफी हर साल होती है, लेकिन ये साल काफ़ी अच्छी हो रही है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मैं दाद देना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ विक्की। विक्की ये बताइए, आप टॉस जीतते तो क्या करते? हम भी पहले बैटिंग करते, लेकिन अब आपको फील्डिंग करना है। बी इंडियन एक ऐसी टीम है जिसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंड से, आपका भी घरेलू मैदान है, पॉजिटिव माइंड से आप खेलने उतरे? जी बिल्कुल, पॉजिटिव माइंड से हमारा घरेलू मैदान है, उस वजह से हम ये कोशिश करेंगे कि बी इंडियन को जितना कम टोटल हो सके उसके अंदर उनको रोकने की कोशिश करेंगे। कम टोटल में रोकने के लिए वो कौन से गेंदबाज है जिन पे आप डिपेंड कर रहे हैं? हमारा ज़्यादा डिपेंड फैसल और शाकिब पे है, 2 अच्छे गेंदबाज हैं। अगर वो अच्छी बॉलिंग करके अपना 100% देते हैं तो जाहिर सी बात है हम उनको कम टोटल में रोकने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करें कि एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। जी बिल्कुल। All the best. The news from the toss box is B Indian won the toss. They decided to the bat first. It's back to the commentary box.
So back to cricket now. Two openers on the middle. Informed batsman Zarar Mullah with Arkam Patel. But Arkam Patel also is struggling for his form. Lot of depend on Zarar Mullah and lot of depend on Suresh Pardhi as far as Mahendra concerned, because Mahendra have three top bowler in their side: Raju Boga, Ghiyasuddin Sheikh and Suresh Pardhi. Two men outside the ring, Papaya Kharik and Vishal Patil. Bilal Sheikh at straight mid-off. Yes, very interesting field setting by captain of Mahindra Sport. Mid-on Raju Boga is straight, mid-off Bilal Sheikh is straight. Here goes Pardhi, left arm round wicket, facing him Zarar Mullah. Balls to Zarar, beautiful ball, keeping low. Zarar tried to tap, beat him outside the first stump. This is the very good start from Pardhi. Suresh Pardhi, left arm round the wicket. Balls to Zarar, whoa, what a shot over the wideish mid-off, all the way to the wideish long off boundary for 4. That was a juicy half volley. Pardhi want to the change of fielding there. No, yes, it's okay. So Zarar off the mark with boundary. Jali's 4 for no wicket. Suresh Pardhi, left arm round the wicket, charging from here. Goes to Zarar. This time drive with the short back lift. Ghiyasuddin is there, but with the stroke batsman through for 1. Zarar moves up to 5. And Jali's 5 for no wicket, chasing a target of 56. Suresh Pardhi, left arm round the wicket to Arkam. This time Arkam drive over the infield. Ball is racing to deep extra cover. Vishal Patil after it. He cut off inside the boundary line, and enough time batsman gets 3. So 3 more to total now, and Mazhar Khan, I think this is the positive reply from Jalis Taloli, because 8 for no wicket. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शुरुआत में यहाँ पर देख रहे हैं हम जैलिस तलोली की काउंटर अटैक करते हुए इस वक्त जरार मुल्ला और अरकम पटेल. Pardhi reaches bowling mark, turn from VIP end. Next match, B Indian won the toss, decided to the bat first. Left arm round the wicket. Ball beauty. Appeal for stumping. What a athletic work from wicket keeper Sujit Naik is there. Break the bells. Lovely ball. Zarar beats in the run of the surface. You can see there. Beautiful ball from Suresh Pardhi. बहुत ही खूबसूरत गेंद रही थी सुरेश पारदी की और बहुत ही खूबसूरत विकेट कीपिंग सुजीत नाइक की. Left arm round the wicket, try to switch it. Once more in trouble. That marks end of the first over. Neck to net fight going on. Jali's end of the first mandatory power play. 8 for no wicket. तू माझी भिंगरी तुझा मी भवरा
तो एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन। ऐसा लग रहा था भाभी सर जब 4 गेंदें फेंकी गई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये ओवर थोड़ा सा महंगा हो, लेकिन सुरेश पारदी ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया। आखिर की 2 गेंदें बहुत अच्छी रही थी, जिसपे एक पे जरार मुल्ला को चारों शानी चित कर दिया था उन्होंने, और एक पे स्विच हिट खेल लेते जरार। अब मरता क्या ना करता गेंदबाजी के लिए गैसुद्दीन शेख को लगाया गया है। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हैं, इतने आसानी से इनको खेला नहीं जा सकता है। हवा अब बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए चलती हुई। आठ रन हुए हैं। पहली गेंद ऊपरी सिरा लगा था, अच्छा शॉट नहीं, 1 रन बनता हुआ। अच्छी शुरुआत करते हुए गैसुद्दीन शेख 1 रन से स्कोर 9 पे पहुंचा है जैलिस तलोली का। लंबा हिट लेना चाहते थे वहां पर अरकम पटेल, टॉप पिच लगने के बाद सीधा सचिन गायकवाड़ के पास गेंद आती हुई और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 9 रन। जरार मुल्ला अब सामना कर रहे हैं गैसुद्दीन शेख का। फील्ड की जमावट, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं। गैसुद्दीन अच्छी गेंद, बढ़िया ड्राइव, लेकिन सीधा मिड ऑफ पे, कोई रन नहीं। रन लेना चाहते थे अरकम, बहुत अच्छी गेंद थी गैसुद्दीन की, फुलर लेंथ की गेंद थी, ड्राइव भी जरूर किया था जरार ने। अच्छा बैटल चलता हुआ जैलिस के बैट्समैन और गैसुद्दीन। धीमी गेंद खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, बल्ले का मोटा सिरा लेके शॉर्ट थर्मैन पे चेंज ऑफ पेस किया था वहां पर गैसुद्दीन शेख ने। कमाल के खिलाड़ी हैं, बहुत ही ज्यादा वेरिएशन अपनी गेंदबाजी में रखते हैं गैसुद्दीन। अरकम पटेल सामना कर रहे गैसुद्दीन शेख का। महिंद्रा का शो देखना ना भूलिए, क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग। इस मर्तबा गेंद को भेज दिया है मैदान के बाहर, 6 रन। It's Bombay style. DJ Solo. 29 मार्च से 8 अप्रैल, ये देखिए फ्रंट लेग को अलग किया, बहुत खूबसूरत शॉट बाएं हाथ के बैट्समैन का, सौरव गांगुली का अंदाज, और गेंद जब बल्ले से टकराई मोहर थी 6 रनों की। गैसुद्दीन शेख अरकम को इस मर्तबा बॉल, बढ़िया वापसी, टीट फॉर टेट जैसे को तैसा जवाब दिया गैसुद्दीन ने। रन 2 विकेटों के नुकसान, 1 विकेट गंवाने के बाद अरकम आउट हुए। 9 रन बनाकर नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं प्रलेश। ये मुकाबला लगता है आखिरी गेंद तक जाएगा, जिस तरह से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। जरार मुल्ला खेल रहे, कामरान पटेल का आना बाकी है। सही कहा भावे सर आपने कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक हमारे एक तुम्हारी। कामरान पटेल ने पिछली गेंद पर सिक्सर लगाया, उसके बाद गैसुद्दीन ने अच्छी वापसी की, बोल्ड कर दिया उनको। हालांकि जरार 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 डॉट गेंदें खेली और 1 चौका लगा है। चार गेंदों का सामना कर 9 रन पे आउट हुए अरकम। इस मर्तबा अंदर की जानिब काटा था गेंद को, कंट्रोल पुल स्ट्रोक, ऑफिस हिप्स खेला, डीप मिड विकेट पर 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति अभी भी
नेक टू नेट फाइट चलती हुई 17 रन बचे हुए जो 4 ओवर हैं उसमें 39 रन अभी भी चाहिए। हमारे बीच अंजुमन स्पोर्ट्स के हमारे सबसे बड़े खैर खा अरकम भाई हमसे जुड़ चुके हैं वीआईपी स्टेज पर। अकरम भाई, हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और आपसे इल्तिमास है कि आपको वीआईपी की जिन्नत को दोबाला करना है। हमेशा अंजुमन स्पोर्ट्स के साथ कदम ब कदम खड़े रहने वाले मोहतरम अकरम भाई, आपका इस्तकबाल है। गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता राजू बोगा को लगाया गया है क्योंकि यहां से मैच मोड़ ले सकता है। बोगा के 2 ओवर देखना है, 2 ओवर गैसुद्दीन करते हैं या सुरेश पारदी, और 1 ओवर कौन करेगा क्योंकि हरीश पाटिल आज टीम में नजर नहीं आ रहे। पंकज को आज स्थान दिया गया है टीम में, मैन फ्रॉम कारीवली। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। राउंड आर्म गेंदबाजी जो राजू बोगा की रहती है वो देखते ही बनती है। वसीम अकरम की याद ताज़ा होती है, इरफान पठान की याद ताज़ा होती है। पहली गेंद टक करते हुए ऑन साइड में ऑफ स्ट्रोस खेला है, दूसरे के लिए जाना चाहते थे और आउट हो गए प्रलेश। बजाना काय को बंद किया? एक बात है कि महेंद्र स्पोर्ट का आज का बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड है। क्या थ्रो पहुंचा था बेल्स के ऊपर सुरेश पारदी का, और इतनी अच्छी पोजीशन में अंपायर थे हसन मोमिन। ये देखिए टक किया था ऑन साइड में, एक ही एक्शन में गेंद को उठाया था। थ्रो देखिए सीधा बेल्स के ऊपर आया था और बोगा ने भी 1 सेकंड भी विलंब नहीं किया, देरी नहीं की। यस, अच्छा निर्णय अंपायर का। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए नितिन। बोगा जरार मुल्ला के लिए अच्छी गेंद ब्लॉक होल्ड में थी, बल्ले की जड़ से खेला, 1 रन बना। दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, वहां पर रन चुरा लिए 2। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। गेंद शॉर्ट पॉइंट पे गई थी और 2 रन बने। बीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर यह मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बोगा, लगातार गेंदों को आगे रख रहे हैं। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। जरार के लिए कट करने की कोशिश, बीट किया जरार को, विकेट कीपर बीट, बाई का इशारा अंपायर का। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं राजू बोगा। हमारे बीच कई मेहमान जुड़ते हुए, आपका अमी के दिल से इस्तकबाल है। हमारे बीच मोहतरम राशिद खान साहब और मोहतरम अफजाल खान साहब जुड़ते हुए, आप दोनों का इस्तकबाल है अंजुमन ट्रॉफी में। इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया सीधे प्लेट से, नितिन ने बढ़िया फील्डिंग वहां पर बिलाल शेख की, 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए।
9 तारीख को इसका मेगा फिनाले रहेगा अंजुमन का। 9 और 10 तारीख को 9 स्टार ट्रॉफी सिटी क्रिकेट की खेली जाएंगी गोवे में। उसके बाद सिटी क्रिकेट में हम आपको कालेर कप में लिए चलेंगे। हो सकता है बीच में BC4 का कोई टूर्नामेंट अनाउंस हो जो 17 से 21 रहेगा। MLA ट्रॉफी 29 से 8 अप्रैल, लेकिन बीच में और भी टूर्नामेंट होना है। बढ़िया गेंद, लेंथ गेंद को पिछले पांव पे खेले थे। राजू बोगा भी एक ऐसे गेंदबाज है, जब मैच बड़ा रहता है तो उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। इसके बाद आज का आखिरी मुकाबला भी इंडियन बनाम SP स्पोर्ट। बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद, कैच छूटा वहां पर, नाराज है राजू बोगा। बहुत खूबसूरत ओवर, अभी भी खुश नहीं है क्योंकि एक कट टू कट मैच में इस तरह के कैचेस आपको पकड़ना होते हैं। और 3 ओवर की समाप्ति पे 23 रन बने। अब 3 ओवर में जीतने के लिए 33 रन चाहिए। ऐसा नहीं कि मुकाबला अभी भी बराबरी पे। बिल्कुल सही कहा भाभी सर। क्या आपको लगता नहीं कि कामरान पटेल को रोके रखना महंगा पड़ा? जब कट टू कट मुकाबले चलते भाभी सर, तो आपके पास अगर 1% चांस भी रहता है, इसको 100% में आपको कन्वर्ट करना होता है। थोड़े से नाराज हो गए तो वहां पर राजू बोगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, सिर्फ 6 रन खर्च किए। देखना है अब उस एंड से क्या गैसुद्दीन शेख, क्या सुरेश पारदी, क्या पंकज। वही मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है। समय में कोऑपरेट करना है दोनों टीमें। गेंदबाजी में सुरेश पारदी को बुलाया गया है। इसका मतलब है कि आखिरी ओवर पंकज, विशाल पाटिल कहीं ऑप्शन है, उनसे कराया जाएगा। देखना है कि जरार मुल्ला जो 8 रन पे खेल रहे हैं और कुल मिलाकर उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया है। नितिन 3 गेंदों में 2 रन बना के खेले। पारदी, समय में कोऑपरेट करना है महिंद्रा स्पोर्ट प्लीज। 11 का आस्किंग रन रेट है और ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट रहेगा। सुरेश पारदी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए जरार के लिए गेंद को पुल कर दिया है, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। Bala 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 कमाल का शॉट खेला है वहां पर जरार मुल्ला ने। छोटी गेंद थी, आइए देखते हैं। ये देखिए अपने आप को गेंद के लाइन से अलग किया, पिछले पांव पे वजन को ट्रांसफर किया, बहुत ही जाजिबुल नजर पुल शॉट, 6 रन। 29 रन में और जरार इस वक्त 14 पर। सुरेश पारदी जरार को बैकफुट पे गए, कट किया हवा में, जरार आउट। डीप पॉइंट पे कोई गलती नहीं की राजू बोगा ने। हालांकि शॉट अच्छा था लेकिन प्लेसमेंट अच्छी नहीं।
बनाने के बाद जरार मुल्ला लौटते हुए। bong bala 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 biggie bong bala 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 biggie bong bala bala ये देखिए, अपने आप को रूम दिया था, बहुत अच्छा कट शॉट था, लेकिन प्लेसमेंट नहीं थी। कोई गलती नहीं की राजू बोगा ने डीप पॉइंट पे। ये मैच करवट बदल रहा है। जिस तरह रात में अगर किसी को नींद ना आए, वो करवटें बदलते रहता है, उस तरह ये मैच करवट बदल रहा है हर गेंद पर। सोलह गेंदों में 27 रन। शाम रंगीन, अंजुमन ट्रॉफी की मैच रंगीन। पारदी की गेंद, अंधाधुन बल्ला चला दिया, 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बाई का इशारा अंपायर रमीज रईस का। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या मुकाबला हो रहा है। ओवर नंबर 4 चल रहा है, कामरान पटेल आए। बिल्कुल भावे सर, बहुत ही बढ़िया मुकाबला चल रहा है, कट टू कट मुकाबला चलता हुआ। जरार मुल्ला जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, वो अब आउट होकर वापस जा चुके, और अब कामरान पटेल। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए पारदी, बहुत खूबसूरत गेंद, कटर थी, समझ ही नहीं पाए कामरान पटेल। अब आस्किंग रन रेट क्रीप होता हुआ 26 रन चाहिए बची हुई 14 गेंदों पर। हालांकि मुकाबला अभी भी बराबरी पर है, काफी बैटिंग लाइनअप बाकी है। पारदी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, गेंद की लंबाई को कम किया, डॉट गेंद। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस वक्त सुरेश पारदी। बिल्कुल भावे सर, अब यहाँ से जितनी गेंदें डॉट होंगी उतना ज्यादा प्रेशर आएगा ज़ाहिर सी उस पर। दो बड़ी टीमें जब टकराती तो इसी तरह का समा निकल पाता है। ना भूलने वाला मैच आप देख रहे हैं, ना भूलने वाली ट्रॉफी अंजुमन ट्रॉफी में। पारदी, कामरान को लॉक कर दिया है, क्या गेंद मैदान के बाहर। यस, बिलाल शेख के सर के ऊपर से 6 रन। लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया, वो लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया, वो लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया। कुड़ी दा पता करो तेरे पिंड दिया, तेरे शहर दिया। 36 रन हुए और 2 ओवर में सिर्फ 20 रन चाहिए। मैच क्या हो रहा है, व्हाट अ मैच। मुकाबला बड़ा भी है, कड़ा भी है, चुनौती बड़ी भी है, कड़ी भी है, लेकिन 2 ओवर में 20 चाहिए। और चुनौती भरी कमेंट्री के लिए आई है माइक्रोफोन पर। आखिरी शॉट को जो खेला था ओवर पिच गेंद थी, और गेंद सर पे से जाए या पानी, दोनों सूरतें डूबने वाली रहती है। बिलाल शेख को भी यह पता था। 2 ओवर में 20 रन, 5वां ओवर दोनों के लिए करो या मरो। और कमेंट्री में मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये मैच में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो शॉट खेला है कामरान पटेल ने लास्ट गेंद पर, बेहतरीन स्ट्रोक था। 36 रन, अब 12 गेंदें जो बची उसमें 20 रनों की दरकार है। मरता क्या ना करता, बोगा को कंटिन्यू रखा है, क्योंकि यहां से मैच मोड़ ले सकता है। 2 बैट्समैन पिच पर, नितिन और कामरान पटेल।
पहली गेंद राजू बोगा की और नितिन की पारी समाप्त होती हुई। बहुत ही खूबसूरत क्या समाप्त किया वहां पर गैसुद्दीन ने। भावे सर, ये जो राजू बोगा का ओवर है ये टर्निंग पॉइंट रहेगा। लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया वो लगदी पंजाब दिया, जिस हिसाब ना तक दिया दिल्ली दा नखराया, स्टाइल ओदा वखराया, बॉम्बे दी गर्मी वांग नेचर ओदा अथराया, लंदन तो आई लगदी आ जिस हिसाब ना चल दिया, लंदन तो आई लगदी आ। बहुत बढ़िया कैच वहां पे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे। इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते हैं जब गेंद बहुत तेज आए। बोगा टू कामरान पटेल, ये सबसे अच्छा बैटल है आज की शाम का। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद राजू बोगा की, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, प्रेशर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते राजू बोगा। यस, फाइटर क्रिकेटर है, 10 में 19 चाहिए, कुछ भी हो सकता है। हालांकि मापोली क्रिकेट धमाका में आखिरी ओवर में 4 नहीं बने थे। राजू बोगा एक बार फिर से सामना करें कामरान पटेल, और इसी बीच देखना क्या कुछ हो पाता है इस गेंद पर। देखना मेरे ख्याल से भावे सर बोल्ड हो गए थे वहां पर कामरान पटेल। देखना अंपायर का क्या निर्णय आता है। अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए बैट्समैन। यस, अराउंड द लेग्स। क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं राजू बोगा। ये देखिए किस तरह से वहां पर आउट हुए। यस, सब बोल्ड हो गए थे वो। ये राजू बोगा की राउंड आर्म गेंद थी जो वसीम अकरम की तरह आती है। ये देखिए राउंड आर्म गेंद थी, कितना राउंड आर्म गेंद को किया था वहां पर। कामरान पटेल के आउट होने के बाद अब थोड़ी सी कठिनाई जैलिस तलोली के लिए बढ़ती हुई। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस वक्त राजू बोगा। पहले आउट किया नितिन को, उसके बाद कामरान पटेल को। एक बात है कि महेंद्रा का जो बॉडी लैंग्वेज है, उन्होंने रन कम बनाए, लेकिन बिलाल को देखिए, गैसू को देखिए, बोगा को देखिए, पारदी को देखिए, पपिया खारिक को देखिए, विशाल पाटिल को देखिए, सुजीत को देखिए, सचिन को देखिए, कल्पेश को देखिए। बॉडी लैंग्वेज जो आज है वो बहुत ही पॉजिटिव है। आज बिल्कुल महेंद्रा का बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मैच को कहीं भी थोड़ा लाइटली ले रहे हो। लेकिन राजू बोगा इज द क्लास बॉलर। पहले ओवर में कितने दिए थे बोगा ने? 6 रन दिए थे। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद कारपेट के सारे गेंद जाती हुई। देखना पपिया खारिक वहां पर मौजूद है और 1 रन पूरा करते हुए इस 1 रन की मदद से स्कोर 37 रन पर पहुंचता हुआ। अब 8 गेंदे भावे सर यहां बची है और रन चाहिए 19। एक बात है कि कामरान पटेल, आपके पास गेम प्लान चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं दिमाग में खेला जाता है। कामरान पटेल को चाहिए था कि दूसरे एंड पे जो बैट्समैन थे उनसे कहते कि आप हिट कीजिए, मैं आखिरी ओवर का इंतजार करूंगा। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं रहती है कि ग्राउंड में आप जिस तरह जब रहते हैं तो प्री प्लानिंग, जिस तरह प्री प्लानिंग क्रिकेट इस वक्त महेंद्रा खेल रही। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं। वहां पर खतरा हो सकता है, लेकिन वक्त रहते हुए अपने घर में वापस आते हुए बल्लेबाज। 2 रन आए इस गेंद पर। देखना है क्या कुछ हो पाता है वहां पर। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि
अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा, अंजुमन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। देखना है अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। अंपायर हसन मोमिन बहुत तेज थ्रो पहुंचा था, बिलाल यस आउट घोषित किया है। दोनों टीमों से एक रिक्वेस्ट है कि अंपायर, क्योंकि BC4 के माध्यम से टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जो अंपायर का निर्णय रहेगा अंजुमन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। अंपायर हसन मोमिन आउट होके आ रहे हैं। वकास, अब कितनी गेंदें और कितने रन चाहिए? 7 गेंदों में 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए जैलिस को। समय में कोऑपरेट करना है प्लीज, इसके बाद एक बड़ा मुकाबला है। नए बैट्समैन अफसर रईस बल्लेबाजी को जा रहे। ये जो गेंद है ये दोनों टीमों के लिए बहुत ही निर्णायक गेंद है। नितिन वहां पे सामना करने जा रहे हैं अक्षय। तो 38 रन। देखिए अंपायर्स हमसे भी ज्यादा ज़हीन रहते हैं। वो ये पूछने के थे लेकिन अंपायर को कि क्या हाथ से स्टंप्स गिरे थे या बेल्स गेंद से गिरी थी, सिर्फ ये पूछना था हसन मोमिन को। ये नहीं था कि बैट्समैन अपनी क्रीज में पहुंचे थे। और इस बार सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं है। 1 बाउंस में गेंद को फील्ड करते हुए लॉन्ग ऑफ की जानिब गैसुद्दीन। 1 रन से ही सहमत रहना पड़ेगा। तो इस 1 रन की मदद से स्कोर 39 रन पर पहुंचता हुआ। अब 1 ओवर और 17 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। बोगा अपना कोठा पूरा कर चुके हैं, सुरेश पारदी अपना कोठा पूरा कर चुके हैं, गैसुद्दीन ने 1 ओवर किया है। और अंजुमन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि 3 मिनट बचे आपके इस ओवर के लिए। महिंद्रा स्पोर्ट, बिलाल, गैसुद्दीन, सचिन, गायकवाड, आपको समय में सहयोग करना है क्योंकि इसके बाद एक बड़ा मुकाबला खेला जाना बाकी।
1 ओवर 17 रन और गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है पंकज को। तो लास्ट ओवर लेकर आते हुए पंकज 6 गेंदे और 17 रन। अगर पूरे मैच का हम आकलन करें तो जरार मुल्ला ने जो स्क्वाड कट खेला था, शॉट अच्छा था, बोगा ने जो कैच पकड़ा इस मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। वहीं से महिंद्रा स्पोर्ट हेलीकॉप्टर शॉट खेला था, बिलाल शेख ने अच्छा कैच पकड़ा। अब 5 गेंदे 17 रन अफसर रईस सामना करने जा रहे हैं बाएं हाथ के बैट्समैन पंकज का। तो अक्षय के आउट होने के बाद अब अगले बल्लेबाज लतीफ। मैच के समाप्ति के तुरंत बाद एसपी स्पोर्ट आपको अपना फील्ड सजाना है। पांच गेंदे और 17 रन। इस बार सामना करेंगे अफसर रईस। महिंद्रा स्पोर्ट्स प्लीज समय के मामले में सहयोग करना। इसके बाद एक मुकाबला और खिलाना है। समय में कोऑपरेट करना है महिंद्रा स्पोर्ट। इसके बाद एक मुकाबला और है और महिंद्रा का भी कप होने जा रहा है क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग। 29 मार्च से 8 अप्रैल 11 दिन तक वो शो चलेगा। पंकज राइट आर्म राउंड विकेट अफसर रईस के लिए। आड़े बल्ले से खेला, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। गेंद आउटफील्ड में, रन नहीं लिया वहां पर। अब 4 गेंदे और 17 रन। बिल्कुल वहां पर रन नहीं लिया है अफसर रईस ने। अब 4 गेंदे बची है भावेसर और यहां से जो रन चाहिए वो 17 है। पंकज एक बार फिर से सामना करेंगे अफसर रईस और इस बार देखना है उठा कर खेल दिया है और ये बाहर जाएंगी। बेहतरीन स्ट्रोक अफसर रईस के बल्ले से आता हुआ। बिल्कुल शायद इसी के लिए अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे। तलोली के माइकल बेवन कहे जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग थी शॉट के पीछे। 6 रन। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। 3 गेंदे और 11 रन। पूरा सीजन उठा के देखिए अब महिंद्रा स्पोर्ट्स का। इनका आखिरी ओवर मानो किसी बड़े मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह रहता है। बिल्कुल भावेसर, मुझे एक फिल्म की याद आती है, आंखें फिल्म की, जिसमें सदाशिव अमृतपुरकर कहते कि आखिर कुर्बानी देगा कौन। और यही बात है कि आखिरी ओवर करेगा कौन महिंद्रा स्पोर्ट्स की जानिब से। पंकज एक बार फिर से सामना करेंगे अफसर रईस। बेहतरीन स्ट्रोक खेला था उन्होंने। इस बार वाइड और कर रखा है, कारपेट के सारे गेंद जाती हुई और इस बार भी कोई रन नहीं लिया है। बिल्कुल सही कहा भावेसर आपने, अगर वो चाहते तो 2 रन ले सकते थे। अब 2 गेंदें बची है और रन चाहिए यहां से 11। 2 बड़े हिट लगाने होंगे अफसर रईस को। अब बहुत खूबसूरत गेंद थी पंकज के आगे रखा था। इस मैच को लगभग अब महिंद्रा जीतकर क्वार्टर फाइनल के दौर को खोलती हुई। टर्निंग पॉइंट अगर हम देखें इस मैच का तो जरार मुल्ला का वो कैच जो राजू बोगा के हाथ में सीधा चला गया था,
वहां से मैच ने मोड़ लिया और महेंद्रा ने दबाव बढ़ा दिया, लेकिन महेंद्रा का आज बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। कांग्रेचुलेशन महिंद्रा स्पोर्ट्स एंड एमएलए रुपेश मात्रे, लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे, 8 लाख तारिक रईस, 8 लाख जायलीस। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं राजू बोगा। आइए मैन ऑफ द मैच राजू बोगा। Excellent bowling from Boga in tight situation. He bowled excellent. Man of the match award goes to Raju Boga. Great player is अकरम भाई के हाथों से हम आपको आर क्लासेस का ये वाउचर दे रहे हैं। हाफिज सलीम आपको सिदरा का वाउचर दे रहे हैं। अफजाल खान आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। इश्तियाक भाई आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। राशिद खान आपको ट्रॉफी दे रहे हैं। उजैर खान स्पॉन्सर, और अकील भाई आपको अयूब भाई की मिठाई दे रहे हैं। First of all, many congratulations, Boga. You are ball excellent in tight situation. But first question about the batting of Mahindra, like Bilal Sheikh, Yasuddin, Sachin Gaikwad. All the heroes are totally flop in the batting. Like Suresh Pardi put an outstanding job, made a valuable 18 runs. Do you satisfy that Mahindra's batting is slightly collapse? Not a collapse, but it has a time being situations in cricket. You have to play as per as time and situations. So it doesn't mean that they are out of form. They will come back very dangerously, I think. Yes, and just now you ball excellent. All the bowlers supported well, like Suresh Pardi also ball excellent. Fielding is the out.